14th Sunday after Pentecost. ईद पेंटिकुस्त के बाद 14वां इतवार. Oh, that men would therefore praise the Lord for his goodness, for he satisfied the thirsty and filleth the hungry soul with good. I welcome you all to this Sunday worship. In the beginning of the service, let us join together in the opening hymn. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ होती रहे. हम सेक्शन 4 मिलकर कहेंगे. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं. आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है. अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. आमीन. स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति. हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं. हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने,
आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। Almighty Father, in your goodness you have provided abundantly for the needs of all mankind. Teach us all to share your gifts aright, that the poor of the earth may no more faint for hunger, but may have food to eat and praise your name through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. We shall have the Bible readings now. हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। The first scripture reading for today has been taken from Genesis chapter 41, verses 49 to 57, and Genesis chapter 42, verse 5. I repeat, Genesis chapter 41, verses 49 to 57, and Genesis chapter 42, verse 5. So Joseph stored up grain in such abundance, like the sand of the sea, that he stopped measuring it. It was beyond measure. Before the years of famine came, Joseph had two sons, whom Asenath, daughter of Potiphera, priest of On, bore to him. Joseph named the firstborn Manasseh, for he said, God has made me forget all my hardship and all my father's house. The second he named Ephraim, for God has made me fruitful in the land of my misfortunes. The 7 years of plenty that prevailed in the land of Egypt came to an end, and the 7 years of famine began to come, just as Joseph had said. There was famine in every country, but throughout the land of Egypt there was bread. When all the land of Egypt was famished, all the people cried to Pharaoh for bread. Pharaoh said to all the Egyptians, Go to Joseph. What he says to you, do. And since the famine had spread over all the land, Joseph opened all the storehouses and sold to the Egyptians, for the famine was severe in the land of Egypt. Moreover, all the world came to Joseph in Egypt to buy grain, because the famine became severe throughout the world. Thus the sons of Israel were among the other people who came to buy grain, for the famine had reached the land of Canaan. This is the word of the Lord. Amen. जय मसीह की। आज का वचन लिया गया है भजन संहिता उसका 145 अध्याय 1 से लेकर 21 तक। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्ण पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्ण करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म को जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा
सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य करते रहें। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। Today's second reading is taken from Acts chapter 14 verses 8 to 18. Acts chapter 14 verses 8 to 18. In Lystra there sat a man, crippled in his feet, who was lame from birth and had never walked. He listened to Paul as he was speaking. Paul looked directly at him, saw that he had faith to be healed, and called out, "Stand up on your feet." At that, man jumped up and began to walk. When the crowd saw what Paul has done, they shouted in the Lycaonian language, "The God have come down to us in human form." Barabbas they called Jews, and Paul they called Hermes, because he was a chief speaker. The priest of Jews, whose temple was just outside the city, brought bulls and wreaths to the city gates, because he and the crowd wanted to offer sacrifice to them. But when the apostles, Barabbas and Paul, heard of this, they tore their clothes and rushed out into the crowd, shouting, "Men, why are you doing this? We too are only men, human like you. We are bringing you good news, telling you to turn from these worthless things to the living God, who made heaven and earth and sea and everything in them. In the past, he let all nations go their own ways, yet he has not left himself without testimony. He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops to their seasons. He provides you with plenty of food and fills your heart with joy." Even with these words, they had difficulties keeping the crowd from sacrificing to them. This is the word of Lord. Thanks be to God. मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, मांस और लहू अपना देकर प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें जल दे दिया। मेरे यीशु उन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु उन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। निर्धन जो आए थे
वचन, तूने उन्हें धन दे दिया। निर्बल जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें बल दे दिया। मेरे यीशु उन सबका दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु उन सबका दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। गूंगे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें स्वर दे दिया। अंधे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें दर्शन दिया। मेरे यीशु उन सबका दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु उन सबका दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांस और लहू अपना देकर प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांस और लहू अपना देकर प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। पूरन करो जीवन मेरा। खुदावंद यीशु मसीह की इंजील सुनो। इंजील मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत से यूं शुरू होती है। Hear the gospel of our Lord Jesus Christ, the gospel according to Matthew, chapter 14, verses 13 following. जब यीशु ने यह सुना तो वो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और सर की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेले को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 ठोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे।
ये मसीह की इंजील है। दिस इज द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। एक आदमी चर्च के पास आता है, कहता है कि मेडिकल बिल पे करने में मेरी थोड़ी मदद कर दी जाए। चर्च उसको जवाब देता है कि हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। और इस बात के लिए आदमी जवाब देता है कि दुआ तो मैं भी कर सकता हूं, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं जो मैं हॉस्पिटल बिल पे कर सकूं। Salvation has different meaning for different people. To a sick, salvation means healing. To a homeless, it means an abode. To hungry, it means bread. One of the reasons why God descended in human form was to become a part of humans. ताकि खुदावंद यीशु मसीह इंसान के दर्द और तकलीफ बेहतर तरीके से समझ सके। Human emotions were very much ingrained in the Godhead. That is the reason कि वो हमारी रूहानी और जिस्मानी दोनों जरूरतें बेहतर तरीके से समझ सकता है। खुदा ने हमारे जिस्म और रूह दोनों को बनाया है और वो उन दोनों की जरूरतें पूरी करता है। थीम फॉर दिस मेडिटेशन इज गॉड प्रोवाइड्स फूड फॉर द हंग्री। खुदावंद भूखे को रोटी देता है। And even as we meditate on the incident of Jesus feeding the 5,000, we will consider the responsibility and approach of the church towards the needy believers. Today is 14th Sunday after Pentecost. आइए हम खुदावंद की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएं। हमारे दिलों और रूहों को खोल दे आए बाप, ताकि आपका पाक कलाम हमसे बातचीत करे, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकाल कर रखें मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 14 बाब और 13 आयत से आगे जो इंजील का हिस्सा आज पढ़ा गया, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 13 to 14। Jesus is concerned with both our spiritual and temporal needs. खुदावंद यीशु मसीह हमारी रूहानी और जिस्मानी जरूरत का ख्याल रखता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कलम कर दिया गया था। खुदावंद यीशु मसीह बहुत बेचैन हो गया था इस बात से, क्योंकि वो उसका फोररनर भी था एंड ही वाज हिज कजन आल्सो। ही मूव्ड इनटू सॉलिट्यूड apparently for contemplation and devotion traveling by boat. मगर 13 आयत के अंदर हम देखते हैं कि जो भीड़ थी इतनी बेचैन थी खुदा से मिलने के लिए कि वो पैदल ही दौड़ पड़ी, और इससे पहले कि यीशु मसीह उस जगह तक पहुंचता वो पैदल ही उस जगह पर पहुंच गए। आप देख रहे हैं कितने बेचैन हैं लोग। जब हमें जरूरत होती है हम किसी भी वक्त कितनी भी दूरी तय कर खुदा के पास पहुंचते हैं, मगर जब हम संतुष्ट होते हैं, when we are satisfied, हम अपने घर में भी बैठकर दुआ करने में हमें तकलीफ होती है। आपको याद होगा कि शागिर्द लोग बड़े जाग नहीं पाए थे गतसमनी बाग के अंदर। हम पूरे साल शायद चर्च ना जाएं, मगर क्रिसमस पर क्या होता है कि चाहे कितनी बारिश आ रही हो, कितना ठंड हो, मगर हम आत्मिकता में इतने ऊंचे होते हैं, वी आर सो हाई इन स्पिरिट दैट वी कैनॉट रिफ्रेन आवरसेल्व्स फ्रॉम गोइंग टू चर्च ऑन क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्रिश्चियंस इन एवरी चर्च। पहला फसली ईसाई, दूसरा नकली ईसाई और तीसरा असली ईसाई। द सीजनल क्रिश्चियंस हु विजिट चर्च ऑन ओकेजन्स एंड फेस्टिवल्स, fake Christians who never go to church, and real Christians who religiously go to church every week. जब हम जरूरत में होते हैं हम कोशिश करते हैं खुदा से मिले। खुदावंद चाहता है कि हम उससे इबादत करने और उसके साथ समय बिताने के लिए हमें ज्यादा खुश होना है।
However, emotions had to give way to ministry and mission had to be continue. Forgetting his pain, Jesus now turned towards the crowd that was in need. 14 आयत बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह उनने उनके ऊपर तरस खाया और उनके बीमारों को शिफा दी. Jesus healed many to exhibit his divinity. He healed some to convey his messages and teachings, but here Jesus healed out of compassion. Even when Jesus himself was emotionally disturbed, he had compassion on others. He is a loving and caring person and feels with us. वो इतनी मोहब्बत करता है, इतना ख्याल करता है, हमारे दर्द में इतना शरीक है कि वो सलीब से भी कायनात के लिए दुआ मांगता है. What a paradigm for the church. Even when there is no agenda, the church has to help for the sake of helping. Matthew Henry writes, in seeking the welfare of men's soul, we should have compassion on their bodies likewise. Along with teaching them spiritual lessons, Jesus is healing their sick and providing food for their bodies. Christ is called, church is called not only to pray, but to feel the pain of the people and to participate in it. The church is called to be compassionate and help the needy. चर्च को अपने मेंबर्स की ना सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी ज़रूरत का भी ख्याल रखना है. और इसी के साथ हम दूसरे नुक्ते पे पहुंचते हैं जो कि मत्ती 14:15 से 16 आयत के अंदर है. Jesus takes up our responsibility. Jesus takes up our responsibilities. Feeding the 5,000 does not merely show the power of Christ, but his love and concern even for our temporal needs. Verse 15 says, and when it was evening, the Jews had 2 evenings. एक करीबन दोपहर को 12 बजे शाम होती थी और एक शाम 3 बजे होती थी जब सूरज ढलने लगता था. मत्ती 14:23 के अंदर दूसरी शाम की बात हो रही थी. तो जाहिर सी बात है जब खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को खाना खिलाया 5,000 लोगों को, तो ये दोपहर की बात हो रही थी, करीबन 12 बजे की बात हो रही थी. Quite interestingly, the paschal lambs were sacrificed at this time. इसी समय रोजाना शाम को कुर्बानियां होती थी इज़राइल के अंदर, और यही वो वक्त है जब खुदावंद यीशु अपनी आखिरी कलमे सलीब से बोल रहे थे. No wonder this is the sole incident recorded in all the 4 Gospels. The feeding of the 5,000 was giving way to the Lord's Supper. It was presenting Christ as the bread of life. It further led to the institution of Lord's Supper to be commemorated by posterity till Christ returns. 15 आयत के अंदर हम देखते हैं कि शागिर्द चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह भीड़ को भेज दे ताकि वो अपने लिए खाना लेकर आ सके. कहते हैं शागिर्द कि भीड़ को जाने दे. In the synagogue, the people were dismissed by reading the dismission, which was some passage out of the prophetic writing. खुदावंद यीशु मसीह उनको कलाम सुना रहा था. उनको रोटी के लिए भेजने का मतलब था कि कलाम में रुकावट आ जाती और उनको खुदा का कलाम नहीं मिल पाता. खुदावंद यीशु मसीह के पास जमीन पर वक्त बहुत कम था. उनको भेजने का मतलब था खुदा के काम को रोकना. The disciples had seen Jesus performing miracles. Please listen to this very, very carefully. The disciples had seen Jesus performing miracles. They had seen him healing and delivering people. They had witnessed Jesus converting water into wine, yet they failed to trust and understand him. However,
the same disciples themselves performed miracles after the Holy Spirit descended on them. After the Holy Spirit, जब पाक रूह नाजिल हो गया, उतर गया उनके ऊपर, उन्होंने खुद अपने आप में बहुत से मौजज़े करे। अजीजों, जब तक हमारे अंदर खुदा का रूह नहीं है, हम खुदा की योजना को, उसके मकसद को, उसके काम करने के तरीकों को समझ नहीं पाते। In this context, they are asking the giver of crops, फसल के देने वाले को कहते हैं, to dismiss people because they thought this was beyond his capacity to feed them. हो सकता है आप रोज कलाम पढ़ रहे हो सकता है आप चर्च की एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व हैं, हो सकता है कि आप खुदा के कामों में, चर्च के कामों में बहुत आगे हैं, मगर जरूरी नहीं है कि आप खुदा की योजनाओं को समझ सकते हैं। जब तक खुदा की कलीसिया में खुदा का रूह नहीं है, तब तक कलीसिया खुदा के कामों को, योजनाओं को समझ नहीं सकती। To this Jesus responded in verse 16 कि तुम इनको खाना खिलाओ। क्राइस्ट एंड द डिसाइपल्स दोनों ही उनकी जरूरतों का ख्याल कर रहे थे, लोगों की जरूरतों का ख्याल था दोनों को, मगर शागिर्दों के पास वो ईमान नहीं था जो खुदा यीशु मसीह के पास था। Wanting or planning something good is futile unless it is in line with what God has planned. What is good according to us may not be good according to God. जो आप सोच रहे हैं जरूरी नहीं है खुदा भी वही सोच रहा होगा, वो खुदा की योजना होगी। The church of God has to seek his will and pursue his mission. All our thoughts are but filthy rags unless they are from God. Spirit is above body and word of God above food. The disciples doubted the ability of the bread of life to satisfy the physical hunger of his children, because the disciples at this moment were not filled with the Holy Spirit. When Jesus was giving manna for the souls, the disciples were worried about bread. Luther rightly said, I had rather live in hell with the word than in paradise without it. Sometimes churches are concerned, कई बार चर्च जो है उनका फोकस मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री पर ज़्यादा होता है, like construction, organizing social gatherings, while sometimes कई बार हमारा नज़र, हमारी फोकस सिर्फ रूहानी बात की तरफ होती है, जबकि हमें रूहानी और दुनियावी या जिस्मानी दोनों ज़रूरतों के बीच में चर्च को बैलेंस रखना चाहिए। As far as mission of God is concerned, we need to remember that the one who has given us the mission will even provide for it. मरियम ने बेहतरीन काम चुना था कि वो खुदा के कलाम को सुन रही थी। मार्था खाना बनाने में बिजी थी। मार्था, हालांकि जो मार्था कर रही थी वो भी भला था, मगर जो मरियम ने करा वो ज्यादा जलाली था। मार्था wanted to feed while Mary wanted to be fed. शागिर्द लोग खुदावंद यीशु मसीह को सिखा रहे थे कि उसे क्या करना है। खुदावंद यीशु मसीह को क्या करना है, कहते हैं उनको भेज दे। जरूरी ये था कि वो खुदावंद से पूछते, क्या है खुदावंद, तू क्या चाहता है, कि वक्त हो गया है, इनको भूख लग रही होगी। We need to learn what he wants from us rather than dictate to him what we want him to do. In his 95 Theses, Luther's 6th point reads, the word of God is the greatest, most necessary and most important thing in Christendom. The word of God is the greatest, most necessary and most important thing in Christendom. Martin Luther. The church within her capacity has to deal with anything that obstructs the preaching and receiving of the word of God. जिसने हमारे रूह को बनाया है, उसने जिस्म को भी बनाया है,
और वो दोनों से मोहब्बत करता है. Ignoring someone's needs or clarifying them as temporal shows our immaturity. बरकत बंद मुट्ठी में नहीं आती. The church works on faith. Our mathematics is the more you give, the more you will be blessed. खुदावन हमसे ये नहीं पूछेगा कि हमने अपने बैंक में कितनी एफडी करी, मगर जब मसीह अपने जलाल में आएगा मत्ती 25:31 से 42 आयत के अंदर, तो वो हमसे पूछेगा कि हमने उसके नाम से कितनों की मदद करी. When the disciples wanted to send them back to buy food, Christ took upon the responsibility to feed them. They do not need to go away. You give them something to eat. The Creator knew that there were 5 loaves of bread and 2 fish in the camp. With this, we reach the final point of our sermon found in verses 17 to 21. He can turn our scarcity into abundance. हमारी कमी को इफरात में बदल सकता है हमारा खुदा. 17 आयत के अंदर शागिर्द लोग अपनी मजबूरी को दिखा रहे थे कि वो इतनी बड़ी भीड़ को खाना नहीं खिला सकते. The disciples did not know that they were encountering the God who created the world out of nothing. 5 loaves and 2 fish were more than enough for 5,000 men, besides women and children, because the host was the Messiah. क्योंकि मसीह मेजबान था, वो 5 रोटी और 2 मछलियां बहुत ज्यादा थी उस भीड़ के लिए. The incident reminds us of the account of Elijah and the widow of Zarephath in 1 Kings chapter 17 verses 8 to 16, and Elisha feeding 100 in the book of 2 Kings chapter 4 verses 42 to 44. 18 आयत के अंदर इससे पहले कि मेजबान ने रोटी को बांटा, उसने बांटने वालों को कहा कि तुम मेरे पास इस ब्रेड को लेकर आओ, और उसने आसमान की तरफ उस रोटी को उठा लिया, क्योंकि बरकत तो वहीं से आनी थी. In his miracle, the triune God works together. In his every miracle, the triune God works together. In the mission of God, the triune God works with the church so that we do not lack anything. जब हम अपनी कमी को खुदा के सामने लाते हैं, वो उस पर बरकतें नाजिल करता है. 21वीं आयत के अंदर लिखा है कि जब चूर 4 टुकड़े उठाए गए तो 12 टोकरियां भरकर थी. Probably a reminder to the 12 disciples that those who doubted the providence of God had a basketful each. जो लोग शक कर रहे थे, उनके पास खिलाने के बाद भी एक टोकरी हर किसी के पास बची. In verse 19, Jesus ordered them, कहता है कि तुम आराम से बैठ जाओ घास के ऊपर, as if they were honored guests at a meal. कलीसिया को ना सिर्फ जरूरतमंद की मदद करनी है, बल्कि उससे मोहब्बत और उसकी इज्जत भी करनी है. 19वीं आयत के अंदर उसने रोटी तोड़ी. Breaking the bread together is a communal and sacramental act that echoes through scriptures through the centuries. Sharing a meal is a primary means of creating and maintaining community. खाना बराबरी के लोगों में खाया जाता था, और 5000 लोगों को खाना खिलाकर Jesus was creating a whole new community of believers, a universal brotherhood where all stood equal, one chalice, one pattern, one spirit, one God, and one community. Jesus' action over the bread echoes the customs of Jewish meals. यहूदी परिवारों के अंदर घर का बुजुर्ग रोटी तोड़कर बाकी घर के सदस्य को दिया करता था. And Jesus handing over the bread to the disciples for distribution is a great symbolism. It symbolizes, ये बताता है that the blessing comes from God through his churches, through his ministers,
to his people. और हमें ईमानदार होना है जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं, जब खुदा की बादशाहत में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। हमें पक्षपात नहीं करना। When we help the needy, we must avoid favoritism. और इस बात को याद रखना है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के नुमाइंदे हैं। As the disciples moved through the crowds, distributing the food, किसी को डर नहीं था कि उसे कम मिलेगा, तो उन्होंने अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जरूरतें पूरी करी। Favoritism in churches happen when we do not trust the providence of God and doubt His grace to satisfy us. The men share with their wives. मर्दों ने औरतों के साथ बांटा, अपनी बहनों, अपनी माओं के साथ बांटा, और बच्चों ने पहले खाया। Maybe Jesus' compassion was contagious in the way that they cared for each other. In the second meal, Jesus satisfies our deepest hungers, heals our brokenness, binds us together as if one body, and strengthens us for service in the world. कहानी में कोई भी भूखा नहीं रहता। The element of selflessness in giving, distributing and eating makes the meal even more satisfying and nourishing. A legacy Church of God needs to follow. 21वीं आयत के अंदर मर्दों की गिनती लिखी हुई है, और जमात में मर्द और औरत एक साथ नहीं खाया करते थे, बच्चे औरतों के साथ खाया करते थे। तो ये जो आंकड़ा है, लगभग 15,000 के आसपास लोग थे जिन्होंने रोटी खाई। Jesus feeding the crowd of approximately 15,000 people with merely 5 loaves of bread and 2 fish. When God is the source of blessing, His ministers serve without discrimination, and partakers care for each other. All are fed well. In his book, Provoking the Gospel of Matthew, Richard S. Swanson writes, the scene in the wilderness is not just a scene about hunger and nourishment. And it's not just a scene about providing food for the hungry. In every mouthful of this scene is rich with layers and layers of traditional flavors. The images and experiences evoked in this simple feeding story are present tense. They open us to the transformative power of Christ in our lives whenever we break bread. खुदावंद यीशु मसीह इंसानी समझ से परे है। हम सोच भी नहीं सकते वो कितना अजीम महान है। हम उसको सिर्फ रूहानी बातों तक सीमित नहीं रख सकते। His presence in this very world indicates the level of His love He has for us. It speaks of His involvement in our daily lives and needs. बरकत उस रोटी में नहीं थी, बल्कि उन हाथों में थी जिन्होंने उसके ऊपर बरकतें मांगी थी, जिन्होंने उसे ब्लेस करा था। The church must not trust in its resources, but in the God from whom all blessings flow. The incident stands as a reminder to the church to help the believers as far as possible, never to doubt in the divine providence of the Good Shepherd. The identity of church is selfless giving and caring without discrimination. The church is called to minister just the way God provides food for the hungry. खुदावंद ने चर्च को बुलाया है ठीक उसी तरह से खिदमत करने के लिए जिस तरह से मसीह भूखों को रोटी खिलाता है। आइए हम दुआ करें। खुदावंद, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं। ये खूबसूरत कलाम जो ये एहसास दिलाता है कि अगर बरकत देने वाला हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ की कमी ना होगी। आए बाप, हम आपसे मिन्नत करते हैं, अपनी कलीसिया को पाक के ऊपर पाक नाजिल करें ताकि वो ईमान में बढ़े और आपकी मर्ज़ी को समझे और अपनी ज़िंदगी और ख़िदमत से आपको जलाल दे, आपकी खिदमत करे और एक दूसरे का ख्याल करे। ये इनायत करे अपने बेटे हमारे दरमियानी और फिदिया देने वाले खुदा यीशु मसीह के वसीले से।
Having heard the word of God, let us now affirm our faith by reciting the Nicene Creed. खुदा का कलाम सुनने के बाद हम अपने ईमान का इजहार करेंगे। हम मिलकर निकाया का अकीदा दोहराएंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वो स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है। वो पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वो नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम खास प्रार्थना में जाएंगे। And now let us join our hearts once again in prayer to our Heavenly Father in Jesus Christ's Holy Son's name and bring forth our petitions. Dear and precious Heavenly Father, we thank you for giving us the gift of prayer, knowing confidently what we ask in Jesus Christ, your Son's name, in accordance with your word, you will faithfully grant. Here we put forward our needs. We pray for the rulers and authorities in our country that you give them wisdom to rule as they should, being mindful to protect and defend the weak, and that disputes be settled with justice in fear of you. We pray for peace in our country and the world and for salvation of all through Jesus Christ. We pray for the eyes and ears of the citizens of our country to be open and attentive to the gospel of Jesus Christ and hence be saved. We pray for employment for everyone so that nobody lacks food. We pray for those sick and helpless who cannot afford medical treatment, that you would heal them all supernaturally. We pray for our CNI brotherhood to be strengthened in faith and be filled and led by your Holy Spirit to become as you intended us to be. We pray especially for deliverance from COVID-19 and for everyone around the world to once again be able to mix freely without fear. We pray all the above in Jesus Christ, your Holy Son's name, and we ask the above, believing that you have heard us and granted our request. In Jesus Christ's name, amen. परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen. है हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, ऐसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। है
अपराधी को माफ करते, उसी तरह तो हमारे अपराधों को